What if I told you that you could build your own AI image generation app completely free in just 15 minutes? No expensive GPU required, no complicated setup, just Python and free API. Hey everyone, my name is Uday, and in this video, I'll show you how to build your own AI image generator app from scratch. We are using Flux Dev model, one of the best open source image model out there, and we'll use Hugging Face interface API for this. And this code is uploaded on my GitHub, so you can get the code from there. In the README, I have added all the project structure information, how to install dependency, how to use your own interface API and everything. So please check it out and let's deep dive in this video. Okay, so this is our project. Here you can see we have the views folder, env file, gitignore file. This is our backend file app.py, and here is readme file where you can find all the information about this project and how to install it. Here is our requirement file. So we will use Flask for the backend. This is Flask course package. I'll explain later what is course. This is request package. If we have to make a HTTP request, then we have to use this dependency also. And this is python.env. So in Ubuntu we have the export option by default, but if we have env file in our folder, then this package is useful to find this file. Okay, so let's start with the backend file first. So this is our backend file. Here you can see we have imported all the packages and we are using Hugging Face token, and this is our API URL from where we are using the Flux model. I'll show you how to get this Hugging Face token later in this video. And these are the some functions that we need to get the images from this API. Okay. And here is our views directory. Here you can see we have one index.html files. Here are some Google font CDNs, and I'm using font or for the icons, and we have styles.css. So this is basic overview of our file. We have CSS file. This is some of the variables that we have used, and this is our JS file script.js. So here is our requirement.txt. So let's install all the packages first. So how can we install all the packages? So it's a simple command pip install -r for read, and we will just add our file name. So it will install all the packages one by one. So here you can see we have installed all the packages. So the next step is getting the Hugging Face token. So for that we have to go to the Hugging Face website. You have to log in first, then on the profile section we can see there is an option for access tokens. So click on that. You can see that I have made multiple tokens here. Then you have to go to create a new token. You can give any token name, let's say XYZ. Then you have to give the all the read permission. If you want, you can tick mark all of this also, but read access is fine. So it can read that you are eligible to use this repository. Okay. So copy this token. Alright. Copy it and add it into your env. Here is an example of this env file. So paste that token here. Okay. Keep one thing in mind. Do not push this token on any public repository, or do not share it with anyone. Let's say we have an Azure account or AWS account. Then in that case, we don't want our credential to get compromised. Okay. So ये चीज का ध्यान रखना.
तो अब हम देखते हैं हमारी बैकएंड फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल की थी वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर रखी है। कोर्स एरर, तो कोर्स एरर कब आती है? जब हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड डिफरेंट पोर्ट पर रन होता है। कई बार प्रोडक्शन पे कोर्स की एरर आ जाती है। तो यहाँ पे हमने पूरी ऐप के लिए कोर्स डिफाइन कर रखा है, लेकिन आप चाहें तो कस्टम रूट्स के लिए भी इसको असाइन कर सकते हैं। और हगिंग फेस टोकन जो है हमारा वो ENV से इस तरीके से हम गेट करेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं कि अगर हमें हगिंग फेस टोकन ENV से नहीं मिल रहा तो कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं लोड डॉट env फंक्शन। ये है ऐप URI। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे विद हेडर। तो ऐप URI हमें कैसे मिल सकता है? तो इसके लिए आप हगिंग फेस पर जाएंगे तो ये यूज दिस मॉडल ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे हम इंटरफेस प्रोवाइडर्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अगर चाहे तो पाइथन का SDK भी यूज कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी हम भेज सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरीके से ऐप URI हेडर बेसिक फंक्शन हमें मिला हुआ है, कैसे प्रॉम्प्ट सेंड करना है और कैसे इमेज डिकोड करनी है। तो हमारे ऐप में भी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे पाइथन की जो हगिंग फेस की जो ऐप URI है उस पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं हमारे हेडर और पेलोड के साथ। पेलोड में हम इस जनरेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। पेलोड के अंदर हम प्रॉम्प्ट, विड्थ हो गया, इमेज की हाइट क्या रखनी है, और स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? आ, हम बोल सकते हैं कि इटरेशन है कि हमारा मॉडल जो है कितनी बार उस इमेज को प्रोसेस करेगा टू गेट द परफेक्ट इमेज। तो हम 15 भी सेंड कर सकते हैं, 30 सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूजर डालेगा वो इनपुट्स जाएंगे, और अगर यूजर नहीं डालेगा तो बाय डिफॉल्ट ये हमारी वैल्यूज जाएंगी। यहाँ पे हमने बेसिक वैलिडेशन डाला हुआ है कि अगर यूजर ने प्रॉम्प्ट नहीं डाला है तो हम एरर शो करेंगे, प्रॉम्प्ट इज रिक्वायर्ड विद दिस कोड। और अगर हमें कोई एरर फेस हो रही है, हगिंग फेस टोकन हमारा वैलिड नहीं है, तो हम इस टाइप से एरर्स यहाँ पे शो कर सकते हैं। देन हम सेंड करेंगे हमारी जो पेलोड है वो उस ऐप URI पर इस फंक्शन की हेल्प से, और वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम उसे डिकोड करेंगे। अगर 503 की हमें एरर आई तो हम ये मैसेज शो करेंगे कि मॉडल इज करंटली लोडिंग। 401 की हमें एरर आई है यानी हमारा टोकन इनवैलिड है, ऑथराइजेशन की एरर है। और अगर हमारी एरर कोड 200 के अलावा कोई भी है तो हम जो भी एक्सेप्शन आ रहा है वो वहां पे शो कर देंगे, और रिस्पॉन्स में से हम कंटेंट गेट करेंगे। तो हमारा ये जो मॉडल है वो रिस्पॉन्स में हमें बेस 64 क्या होता है? ये फॉर्मेट होता है इमेज को एज अ टेक्स्ट रिप्रेजेंट करने का। तो उसके लिए हम डिकोड फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा इनकोडेड जो इमेज बाइट्स मिला है हमें मॉडल के रिस्पॉन्स में उसे डिकोड करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कोड हो गया हमारा रिस्पॉन्स गेट का। और हेल्थ एक हमारा अलग से API राउट है। हम कोई भी API बनाते हैं तो हेल्थ राउट जरूर बनाते हैं, ताकि अगर कोई भी उसे यूज कर रहा है तो पोस्टमैन वगैरह से वो पहले इस पे रिक्वेस्ट डाल के चेक कर सकता है कि हमारा बैकएंड चल रहा है या नहीं। यहाँ पे हम कस्टम मैसेजेस डाल सकते हैं। तो ये हमारा का रूट राउट हो गया जो हमारा मेन पेज खुलेगा। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं सेंड फ्रॉम डायरेक्टरी। ये हमारा फ्लास्क मेथड, फ्लास्क के अंदर ही इनबिल्ट फंक्शन आता है जो कि हमने इंपोर्ट कर रखा है। तो ये क्या करेगा, व्यूज से index.html फाइल को होस्ट करेगा रूट राउट पर। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन हमारा हो गया। ये हमारा ऐप कैसे रन होगा उसका कोड है।
कैसे इस ऐप को रन कर सकते हैं? सिंपल कमांड है, पाइथन हमारा फाइल नेम। तो आप देख सकते हैं हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा 5000 पोर्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये होम राउट जो था उस पे हम देख सकते हैं index.html फाइल हमारी खुल चुकी है। तो इंडेक्स भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी इंडेक्स फाइल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं गूगल फॉन्ट्स है, फॉन्ट ऑसम हमने यूज किया हुआ है, स्टाइल डॉट सी एस एस हमने इंपोर्ट करा है। तो ये बेसिक सा हमारा यूआई है। आप एआई टूल्स की हेल्प से भी ये यूआई बना सकते हैं। और जो भी इनपुट फॉर्म है, ये इनपुट फॉर्म है, और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हमारी फ्रंट एंड से इस एपीआई एंड पॉइंट पर, यानी हमारी जो भी एपीआई है उसकी जनरेट मेथड पर एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेगा। यहाँ पे मैंने स्टेटिकली राउट दिया है, आप चाहे तो विंडो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। और बेसिक सा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट दिया हुआ है, और हमने जो फाइल हमें मिल रही है उसके लिए डाउनलोड का ऑप्शन भी दे रखा है। और ये बेसिक सा इनपुट वैलिडेशन हो गया, जो हमारा स्टेप्स या प्रॉम्प्ट वगैरह होगा उसके लिए। तो जनरेट में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉम्प्ट मिल रहा है, यूजर जो प्रॉम्प्ट डाल रहा है उसे हम ट्रिम करेंगे। ये बेसिक प्रैक्टिस है। अगर प्रॉम्प्ट नहीं है तो हम वहाँ पे अलर्ट बॉक्स शो कर रहे हैं, अलर्ट मैसेज में हम एरर दिखा रहे हैं। और अगर प्रॉम्प्ट बहुत छोटा है, यानी कि 3 कैरेक्टर्स से उसकी लेंथ छोटी है, तो हम ये एरर शो कर रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इज टू शॉर्ट। तो जो भी पैरामीटर्स हमें वहां से यहाँ से मिलेंगे यूजर के इनपुट से, हाइट विड्थ एंड स्टेप्स, उसे हम बाइंड करेंगे इस पैरामीटर में, और उसे हम सेंड कर देंगे विथ फैच मेथड। जो हमारा एपीआई एंड पॉइंट है वहां पे हम भेज देंगे। एंड देन हमारा रिस्पॉन्स अगर ओके नहीं है तो हम वहाँ पे एरर शो करेंगे, वरना हम वेट करेंगे जब तक रिस्पॉन्स आए। और जो भी हमारी इमेज आएगी बेस 64 में, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो उसके लिए हमारा ये रहा डिस्प्ले इमेज फंक्शन, जो कि इमेज लेगा और उसे एज अ बेस 64 इमेज शो करेगा वहाँ पे। ठीक है। बाकी ये लोडिंग और हाइड वगैरह का जो भी यूएक्स के लिए है फंक्शन, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ये हमारी सीएसएस फाइल हो गई। सीएसएस भी अगर आप फ्रंट एंड नहीं जानते तो एआई से बेसिक सीएसएस बनवा सकते हैं। तो एक बार चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा टूल कैसे वर्क कर रहा है। तो एक प्रॉम्प्ट हम ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स में मैंने प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। तो हम ये फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। अ फ्यूचरिस्टिक सिटी cityscape at sunset with flying cars, neon light reflecting on wet streets in cyberpunk style। तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। विड्थ हाइट मैं सेम रखना चाहूंगा। स्टेप्स हम चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। अभी 30 रख देते हैं हम। तो यहाँ पे हम इमेज जनरेट कर लेंगे। इसको 20 से 25 सेकेंड हो सकते हैं। अगर हम ज़्यादा स्टेप्स डालेंगे तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि फिर हार्डवेयर को प्रोसेस करने में उतनी ही ज़्यादा इटरेशन करनी पड़ेगी। तो हम अगर कम स्टेप्स रखेंगे तो हमारी इमेज क्वालिटी भी डाउन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी साइबर पंक स्टाइल की अच्छी सी इमेज जनरेट हो चुकी है। और यहाँ पे हमने डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। देख सकते हैं हमारी इमेज भी डाउनलोड हो चुकी है। अभी फ्लक्स का 2 मॉडल भी आया है। अगर आप चाहें तो मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बना सकता हूँ, लेकिन आपको सिंपल सिर्फ एपीआई राउट चेंज करना है और आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत बेसिक सा ट्यूटोरियल बनाया है। अब आप चाहें तो इसमें आप ऑथेंटिकेशन डाल सकते हैं, सेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, ताकि अलग अलग यूजर अलग अलग चैट्स कर पाए और वो सेव रहे।
तो आप हिस्ट्री जैसा बना सकते हैं, तो आपका मिनी प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, हमने बिना जीपीयू की हेल्प से इंटरफेस एपीआई के यूज से हमने ये टूल बना दिया है। इसमें हमें थोड़ी लिमिट मिलती है, हम लिमिटेड ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हैवी मॉडल है। अगर आपको ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजनी है तो आपको फिर हगिंग फेस का प्रो अकाउंट लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम चैटबॉट हो गया या कोई एलएलएम प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो बनाए तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिएगा। हम क्वेन के या फिर लामा के मॉडल्स हम कैसे लोकल में यूज कर सकते हैं बिना किसी एपीआई के, उस पर वीडियो बना सकते हैं। तो ये जो भी कोड है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप गिटहब से प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर change your Hugging Face token and you can run this project and customize according to your need and make a mini project। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपकी कोई अगर न्यू रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।